दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अमेरिका में इन दिनों फायरिंग की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा ही एक वाकया बुधवार शाम को पेश आया, जबकि बोनी नाली में एक 40 वर्षीय शख्स जिसका नाम रॉबर्ट कॉर्ड बताया जाता है, जो कि फायर आर्म्स ट्रेनर है और जिसने कि यूएस मिलिट्री से ट्रेनिंग ली हुई है, उसने 7 लोगों पर गोली चला दी और जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती वहाँ पर, वो वहाँ से फरार हो गया। फिर उसके बाद एक बार में घुसा और गोली चलाकर 16 लोगों को जान से मार दिया और 50 से 60 आदमी जख्मी हैं। मरने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों अमेरिका में हमारी तरह नहीं है, हमारे मुल्क की तरह कि अगर एक 2 नाली बंदूक भी अगर आपको रखना हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस होता है, बहुत आसान नहीं होता लाइसेंस लेना। रिवॉल्वर और राइफल की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अमेरिका में आप रिवॉल्वर, राइफल और ऑटोमेटिक गन कुछ भी ले सकते हैं। अमेरिका के 27 राज्यों में आपको गन रखने के लिए किसी भी तरह की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी जाकर मार्केट से गन खरीद सकता है और अपने पास रख सकता है। वहाँ पर कितनी गन है इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के हर 100 लोगों के पास 120 गन है और ये तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए वहाँ पर आम दिनों में फायरिंग होती रहती है, लोग मरते रहते हैं। लोग कितना मरते हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पर डे 120 अमरीकी इन फायरिंगों में जाँ बहक हो जाते हैं। सालाना आधार पर ये आंकड़ा 43,375 का बैठता है, जो कि किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। इसको लेकर अब अमेरिका में बहस भी शुरू हो गई है और लोग 2 धड़े में तकसीम हो गए हैं। एक धड़ा कहता है कि जो पॉलिसी जारी है वो जारी रहनी चाहिए, जबकि दूसरा तबका कहता है कि गन के लिए अब लाइसेंस लेना ज़रूरी कर देना चाहिए। देखिए आगे इसमें क्या होता है। It was just another Wednesday evening at a bowling alley in Maine. A children's bowling league was underway when suddenly the excitement in the air was replaced by fear. A gunman simply walked into the bowling alley and shot at least 7 people. Chaos ensued. Survivors say it took the police about 10 minutes to reach the scene. By then, the gunman had escaped, but only to pick his second target. He moved on to a nearby bar and opened fire again, this time killing at least 16 people. Reports say the number could be higher. At least 50 people have also been injured. The suspect is still on the run. According to the police, this man is the person of interest. He's a 40-year-old firearms instructor. He was trained by the US military. Several cities in Maine are in lockdown and a massive manhunt is underway. The sounds of helicopters and sirens are all that one can hear. We have literally hundreds of police officers working around the state of Maine to investigate this case, to locate Mr. Card, who again is a person of interest and a person of interest only. America is once again grieving. The first thing I like to say is I don't know everything that's going on, but I'm not that smart, but I know we as a country got to do something. That is absolutely disgusting, and it's sad. And it's sad that we sit here and watch this happen time after time after time after time, and nobody does anything about it. Time after time. That analysis is not wrong. Just this week, 3 US states saw mass shootings. As of October, 565 mass shootings have been reported in the US in 2023. At this rate, it will eclipse the 2021 record, which stood at 686 incidents of mass shootings. Every day, 120 Americans die from a gun shooting. That's an average of 43,375 deaths per year. No other high-income country suffers from such a high death toll from gun violence. The US gun homicide rate is 26 times that of other high-income countries. Even the gun suicide rate is nearly 12 times higher. The US has a lot of guns. At least 27 American states allow residents to carry a handgun without a permit. In 2018, about 390 million guns were in circulation in the US. That's about 120 firearms per 100 residents. But that number has likely increased. 1 in 5 households purchased a gun during the pandemic. More guns means more deaths because of it. But despite the carnage, the US refuses to fix its gun epidemic.
The public and politicians are all divided on this issue. Prevention is better than cure, but when it comes to guns, America seems interested in neither. दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर कतर से आ रही है। वहां पर एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है। ये लोग कतर की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम अज़हरा अल आलमिया है उसमें काम करते थे। ये एक नेवी की कंपनी थी जो पनडुब्बी वगैरह मेंटेनेंस का काम करती थी। इसमें ये लोग काम करते थे। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने कंपनी की कॉन्फिडेंशियल जानकारी इजराइल को पहुंचाई। कतर की खुफिया एजेंसी का कहना है कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इन लोगों ने ये सब जानकारी इजराइल को पहुंचाई है। इसी बेस पर पिछले साल सितंबर में कतर की पुलिस ने इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर केस चला। मार्च में इन पर अदालत ने आरोप तय कर दिए और अब 26 अक्टूबर को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है कि इन 8 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा दी जाएगी। खैर, ये अभी आखिरी सजा नहीं, अभी ऊपरी कोर्ट में अपील की जा सकती है और भारतीय विदेश मंत्रालय का इस पर कहना है कि हम फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। कॉपी मिलते ही हम कानूनी रूप से जो करना होगा वो करेंगे और हम कतर के ऑफिसर्स के भी टच में हैं। काफ़ी कहने पर कतर की गवर्नमेंट ने इंसानी बुनियादों पर इन पूर्व सैनिकों के परिवारों को उनसे मिलने की इजाज़त दी थी, लेकिन उन पर क्या आरोप हैं ये मंजर आम पर नहीं लाया गया है, ये कॉन्फिडेंशियल है। देखिए इस बारे में आगे क्या होता है। On the issue of the 8 Indians who are in detention in Qatar, let me reiterate what we've been saying. We are seized of the matter. Our embassy is actively pursuing this case. You mentioned about the family members, not being allowed to get a visa. No, we are trying to facilitate that. I understand family members who are in Doha have been able to go there, and we are trying to facilitate those who are here to go. The update that I have is that today we got our second consular access. Our embassy officials were able to meet the detainees and ascertain their well-being. And of course, we will continue to extend all possible consular assistance in this case. दोस्तों, इधर सऊदी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स वीडियो बनाकर ये बता रहा है, बहुत फखरी अंदाज में बता रहा है कि उसने 42 शादियाँ की हैं और तकरीबन हर कबीले से की है। उससे जब पूछा गया कि किस कबीले की औरत सबसे बेहतर लगी, उसने कहा तकरीबन हर ही कबीले की औरत बेहतर है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे मैं स्क्रीन पर नहीं बता सकता। तब यहाँ सवाल उठता है कि इस्लाम ने 4 शादी की हदबंदी की है तो उसने 42 शादियाँ कैसे कर ली। तो दरअसल उसने इस्लाम में दी गई छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इस्लाम में बैकवक्त 4 शादियों की हदबंदी की गई है कि बैकवक्त 4 से ज़्यादा बीवी आप नहीं रख सकते। उसमें ये छूट दी गई है कि अगर आप एक की मौत हो जाती है या एक को तलाक दे दी जाती है तो फिर से आप एक कर सकते हैं। तो उसने इसी छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एक के बाद एक दीगरे कई औरतों को तलाक दिया। उसके बाद नई शादियां करते गया और इस तरह उसने कुल 42 औरतों से निकाह किया। तो ये इस्लाम में दी गई छूट का नाजायज़ फ़ायदा है। इस्लाम ने 4 शादियों की हदबंदी की है और तलाक को हलाल किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी शादी और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने के लिए औरतों को तलाक देते जाएं। अक्सर ज़रूरी होने पर, बहुत ज़रूरी होने पर ही आप पसंद किया गया इस बात को कि आप औरत को तलाक दे दें, न कि नई शादी करने की, दूसरी शादी करने के लिए तलाक दे दें। इस पर बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया है कि इस शख्स ने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है और इस्लाम की दी गई छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। 42 حرمة وافضل وحده اخذتها وشنو يعني افضل قبيله اخذت منها وشنو كلها بيخرب بس يعني افضل وحده والله الحين ما نعم سجلتها ما يحتاج فيها من تسوى 80 بكره نعم وفيه من ترخص بقيت قعود وفيه جنات تدارج انهارها فيه نيران بلي الله اكبر وفيه من تضوي ويضوي الغنم معها وفيه من تنحى الغنم بعود ما هو واحد والله. لا اللي حبيته ولها الحين في قلبك من هي؟ والله واجد لا علمني تتعلم لا علمني
इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।